हेलो बेटा। यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेज। आज हम आपको +2 क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर जो चल रहा है आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हमारा लेक्चर 7 है ऑन दिस चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन इन +2 NCERT बुक। Exercise 9.3 question 13 to 17 we have to do. Here general and the particular solutions is going on in this exercise of the differential equation. But in that last question statement questions are there. First we have to make the differential equation according to the given statement, and we have to find the curve, means that solution of the differential equation. Solution curve means that same method, same thing. Okay, we have to do. Now question 13 is given. Cos of dy by dx is equal to a. A belongs to real number. A constant है कोई real number. And at the point x is equal to 0, y equal to 1, we have to find the constant value, arbitrary constant c, integral constant c, after finding the solution in the general form. Now you know that. So here this differential equation, like cos of something and dy by dx in something, so cos will go that side. Cos inverse a, easy to differentiate after that. Dy by dx, easy to make the separation, variable separation. Okay. Now this dy by dx is equal to cos inverse a. A is constant, so this is constant only. So in constant side dx we can take, and here dy as it is. So 1 dy is equal to cos inverse a constant into dx. Constant into dx, integral, constant as it is. Integral can do 1 dx then x, and 1 dy integral then y. So y equal to cos inverse a into x plus constant, integral constant. Now put this point, given point what, x is equal to 0, y is equal to 1. So putting this point x equal to 0, y equal to 1 in this solution, so then it will come y equal to 1 here, 1 cos inverse a into x is 0 into 0 plus c. So into 0 means ये 0 हो गया, so c is equal to 1. So we got c value 1. Then c value putting in this, then required solution y is equal to x into cos inverse a plus 1. Okay, or we can simplify this कि 1 taken that side, y minus 1 हो जाएगा and x डिवाइड में चला जाएगा. तो y minus 1 divided by x is equal to cos inverse a, and then cos inverse इधर आ जाएगा, a की वैल्यू आपकी निकल जाएगी cos inverse y minus 1 upon x. This is your solution curve. Okay beta, done. Solution of this. Now after that question 14. What is question 14? dy by dx is equal to y tan x. Y is equal to 1 when x is equal to 0. This is given. So at this point we have to find the particular solution. Okay. Now here variable separation, dx will go and multiply that side with tan x, and into y है वहाँ से divide में आ जाएगा. तो dy upon y is equal to tan x into dx. Done. Then log y is equal to minus log cos x. We know integral of tan x minus log cos x or log sec x. ठीक है, we know. So minus log cos x plus constant c. Now putting here this point. Okay. What point? x0 y1. तो y1 पुट करते हैं, x0 पुट करते हैं, cos 0 होता है 1, and then minus log 1, this also 0, and y0 y1 पुट करते हैं, log 1 0. तो c यहाँ पर 0 बन गया, 1 हो जाएगा. ठीक है. Then log y is equal to log x cos x is equal to c. Then log y into cos x log mn, ये भी यहाँ भी पुट कर सकते हैं, log c. Then we can put here also. Then a into sec x, y is equal to a into sec x. Now here if x is putting here 0, so sec 0 is 1, and a into 1 is
a, then a is equal to y is 1, तो a is equal to 1 हो जाएगा, तो 1 into sec x then sec x, तो y is equal to sec x. This is your solution. Clear? Now similarly next question we can do. Find the equation of a curve passing through the point 0 0 and whose derivative equation, whose differential equation, तो कर्व है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल टू e पावर x sin x गिवन है, तो इसका क्या फाइंड करना, इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड पासिंग थ्रू 0 0, यानी व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पर हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देनी है, और वो कांस्टेंट पुट कर देना है c, देन इट विल बी योर सॉल्यूशन, दैट विल बी इक्वेशन ऑफ द कर्व. नाउ हियर व्हाट इज क्वेश्चन, y डैश मींस dy by dx इज इक्वल टू e पावर x sin x. ना वेरिएबल सेपरेशन, ये dx उधर x वेरिएबल में है पूरा फंक्शन राइट हैंड में, तो dx उधर राइट हैंड में चला जाएगा, देन 1 dy इज इक्वल टू e पावर x sin x इंटू dx. दिस इज योर वेरिएबल सेपरेशन. नाउ फॉरवर्ड वी कैन डू इंटीग्रल बोथ साइड. ओके, नाउ कंटिन्यूअस. हाँ बेटा, कंटिन्यूअस बेटा दिस सॉल्यूशन. ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर जो 1 dy है उसका y बन गया इंटीग्रल, एंड राइट हैंड में हमारे पर फंक्शन है e पावर x sin x dx. इसको हमने हाईलाइट कर लिया. ओके, बिकॉज हियर इट इज इंटीग्रल बाय पार्ट. ओके, यहाँ रिपीट हो जाएगा ये दोबारा फिर इंटीग्रल. ओके, तो आई टेकन, तो sin x इंटू ई पावर x. ओके, तो इसमें क्या फॉर्मूला लग गया, u इंटू वी या फर्स्ट इंटू सेकेंड या इंटीग्रल बाय पार्ट. फर्स्ट फंक्शन जो होता है आईलेट के अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया है, तो sin x इज फर्स्ट और e पावर x एक्सपोनेंशियल सेकेंड. तो हियर sin x एज इट इज एंड सेकेंड का इंटीग्रल ऑफ e पावर x माइनस होल इंटीग्रल एंड हियर डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट. तो डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e पावर x इंटीग्रल e पावर x एंड होल अगेन इंटीग्रल. तो अगेन हेयर इंटीग्रल सेम टाइप, हेयर cos x बन गया फंक्शन sin x की जगह, तो अब फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो दिस एज इट इज sin x e पावर x माइनस होल ब्रैकेट, फिर वही फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट एज इट इज cos x इंटीग्रल ऑफ e पावर x माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos x minus sin x into integral of second e power x whole integral again dx. तो दिस माइनस माइनस प्लस हो गया. ओके, तो दिस इज प्लस एंड देन दिस आउटसाइड माइनस है पूरे से, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, 3 माइनस होगी तो माइनस आई बनेगा. ये आई क्यों बन गया, क्योंकि साइन एक्स ई पावर एक्स हमने आपका मान रखा आई, तो ये फिर अगेन यहाँ रिपीट हो गया इंटीग्रल, तो आई बन गया. तो ये माइनस आई बनेगा यहाँ, और माइनस आई इधर आकर प्लस 2i बन जाएगा. आई प्लस आई 2i, तो e पावर x साइन एक्स एज इट इज माइनस e पावर x कोस एक्स एज इट इज, एंड ये आपका उधर चला गया, माइनस आई था प्लस आई. डन. हियर पुटिंग पॉइंट टू फाइंड द इंटीग्रल कांस्टेंट c प्लस c. नाउ पुटिंग x0 y0, तो हियर इफ x0 आफ्टर दैट पुट करेंगे, पहले इसको पुट यहाँ कर दें, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू आई की वैल्यू पुट कर दो. i इज, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो e पावर x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ई पावर x कॉमन ले लिया मैंने, प्लस कॉन्स्टेंट यहाँ पुट करो x0 y0, तो x0 पुट करेंगे y0, तो 0 इज इक्वल टू e पावर 0 इज 1 अपॉन 2 इंटू साइन 0 इज 0 माइनस कोस 0 इज 1, तो माइनस 1, तो इट इज माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, देन c इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 उधर जाएगा प्लस 1 अपॉन 2, तो c इज प्लस 1 अपॉन 2. सो पुटिंग दिस इन द ओरिजिनल solution, then y is equal to e power x upon 2 into sin x minus cos x plus constant c is 1 upon 2. Done. So this is our solution, required curve. Clear? Answer. So like this we can do next question. Question number
16 is for the differential equation xy dy by dx is equal to x plus 2 into y plus 2. For this differential equation find the solution curve. इसका solution curve find करना है passing through the point 1, -1. तो क्लियर दैट, यानी कि यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है. टू फाइंड द कांस्टेंट, फर्स्ट इंटीग्रेट वेरिएबल सेपरेशन इजी, क्योंकि है y इंटू डी वाई और उधर आपका इंटू में y प्लस 2 है, वो डिवाइड में आ जाएगा. तो y इंटू डी वाई अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, उधर x प्लस 2 है, इधर अपॉन डी एक्स है और ऊपर x है, x नीचे आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स. तो वेरिएबल सेपरेशन हो गया. देन y अपॉन वाई प्लस 2 को हमने क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन न्यूमरेटर. दिस इज द टेक्निक. Add 2 and subtract 2 in the numerator, then y plus 2 minus 2. So y plus 2 separate denominator y plus 2, that is 1, and then minus 2 upon y plus 2. Like this we can write. Okay. After that x plus 2 upon x, same. x upon x कर लो, ऊपर दो टर्म है नीचे एक है, तो x upon x कर लो 1 and 2 upon x कर दो dx upon x, easy. Then 1 dy y बन गया, dy बाई वाई प्लस 2 एंटी डेरिवेटिव, तो ये log हो गया, log y प्लस 2 बन गया, एंड ये आपका x हो गया, एंड देन dx अपॉन x log x एंड प्लस कांस्टेंट. नाउ हियर पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1. तो y -1 -2 log ऑफ y इज -1 प्लस 2, देन 1 log 1 इज इक्वल टू x इज 1 plus 2 log of 1 plus c, log 1 0, log 1 0, so it is -1 here and here plus 1 will go that side, -1, तो -2, तो constant c will be -2. okay, because log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. डन. ओके. नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड कर्व हमारा क्या बन गया, y इक्वल टू, ये रिक्वायर्ड कर्व y इक्वल टू, ये नेगेटिव उधर पॉजिटिव ले लो, x प्लस ये ट्वाइस log x है एंड ट्वाइस log y प्लस 2 है, प्लस में तो 2 कॉमन है, log m प्लस log n, log mn, तो log m इंटू n, x इंटू वाई प्लस 2 -2. दिस इज योर सॉल्यूशन. ओके, क्लियर. ओके, डन. So like this we can do, this is our curve equation, y is equal to x plus 2 into log x into y plus 2. ओके, ज़्यादा आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि y यहाँ है तो इसको x को इधर ले सकते हैं, y माइनस एक्स कर सकते हैं. ओके. ओके, और फिर इसको -2 को भी इधर +2 ले सकते हैं, y माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, फिर log को e पावर में लिख सकते हैं. लाइक दैट वी कैन सॉल्व. ओके, but this is your curve solution done. If we have to prove something, then we can simplify forward, otherwise answer we can do. Done. So similarly we can solve forward. Next question, beta, continuous. Next question, question number 17. What is this? From the NCERT book. Find the equation of a curve. Statement question है बेटा. Curve passing through, इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना जो पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, यानी ये कंडीशन हो गई. व्हेन x इज इक्वल टू -2, y इक्वल टू 0, इस पर हमने इंटीग्रल कांस्टेंट निकाल देना, फिर वो इक्वेशन में पुट कर देना. तो गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, एट एनी पॉइंट x y ऑन द कर्व, कर्व पर कोई x y एक जनरल पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx होता है, product of its tangent, product of the slope of its tangent and y coordinate, यानी y into dy by dx is okay of its tangent, y coordinate of the point is equal, this is main, is equal to the x coordinate of the point. तो x coordinate means x. Done. General के कंडीशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2.
because passing through the point 0, -2. This curve. So then first find the curve means what, according to question डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर हमने इसको वेरिएबल सेपरेशन किया, तो y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स उधर है, इधर डी एक्स डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में एक्स इंटू डी एक्स, सिंपल हो गया। तो इंटीग्रेट किया, y का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, put the point x is equal to 0, y is equal to -2 to find the integral constant c. Then here put किया y is equal to -2 का होल स्क्वायर 4 upon 2 is equal to x की वैल्यू 0, तो 0 upon 2 0 प्लस c यानी 0 is equal to 2, तो then 0 plus c is equal to 2, then c value calculated, therefore put the c value original here, y square upon 2 is equal to x square upon 2 plus 2, or we can write this कि y square minus x square this side आकर 2 LCM, then 2 will go multiply that side, 2 to the 4 is equal to 4. So this is your required curve equation. Okay, ठीक है, clear, done, very simple. Now next question number 18, last question. What is this beta? This is a statement question, important question. This is important question. Okay, at any point x y of a curve पर कोई एक जनरल पॉइंट है, उस पर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज, स्लोप उसका यानी डी वाई बाई डी है, इज इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी एक्स वाई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड टू द पॉइंट -4, 3. इससे ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, उसका स्लोप जो है उसका ट्वाइस होगा, उसके इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेज थ्रू -2, 1, यानी वो जो पास हो रहा है उसको पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू -2, तो इस पर हमें इसको सॉल्व कर देना है कांस्टेंट निकालने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी सिंपल कि टेंजेंट का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स एंड लाइन सेगमेंट का स्लोप फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर दो पॉइंट है और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है तो ये फॉर्मूला आपका स्लोप का यू नो इन +1 आल्सो डन दिस, ठीक है। y2 minus y1 upon x2 minus x1, it is the slope of a line segment passing line segment which exterior point, दो पॉइंट on that x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक तो xy है, एक पॉइंट है -4 -3, तो y2 minus y1, तो y2 means I taken y and y1 taken -3, तो माइनस +3, तो y +3 अपॉन x2 माइनस x1, तो -4 एंड माइनस बाहर +4, तो x +4, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव मेड दिस बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस। नाउ dy बाई वेरिएबल सेपरेशन y +3 दिस साइड आ गया एंड 2 एज इट इज एंड dx मल्टीप्लाई में अपॉन x +4 एज इट इज। तो दिस इंटीग्रेट नाउ बोथ साइड, तो व्हाट विल कम, तो इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन y +3 log y +3, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x +4 log x +4, बोथ log प्लस कांस्टेंट, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1, तो x यहाँ पर 2 पुट किया, y इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो y यहाँ पर 1 पुट किया तो log 4 बन गया, -2 ये इधर ले लिया माइनस साइड में, c की वैल्यू निकालनी है, तो -2 log x की वैल्यू -2 + 4, तो -2 + 4 + 2, तो log 2, this then twice log 2 means log 4, this is also log 4, n log m power n, 2 power 2 4, तो log 4 and log 4 cancel, तो c is equal to 0, तो putting this and value c 0, then 0 means log y +3 -2 log x +4 is equal to 0, constant, okay, value is 0, so we can say कि दिस होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे n log m से, और फिर log m अपॉन n, तो log y +3 अपॉन x +4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड 0 को लिख सकते हैं log 1, हम क्या लिख सकते हैं 0 को log 1, ओके। देन ये उधर log से log कैंसिल हो जाएगा एंड ये उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो y plus 3 is equal to x plus 4 whole square we can write. So this is your required curve which we have to find. Done. Equation of the curve. और सॉल्व कर सकते हैं होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और एक साइड कर सकते हैं, ओके, इक्वल टू 0 इक्वेशन बना सकते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई. डन. ओके, क्लियर. So like this we can do. Like, share and subscribe the channel and forward the video to the contact और उनको भेजें जो आपके रिलेटिव हैं और जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ते हैं. ये वीडियो आपको +2 की भेजनी है तो जरूरी नहीं कि +2 में कोई पढ़ता हो, वो 11th 12th जिनको लिंक है इनके साथ, तो उनको गाइड करो कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को पहले और फिर आपको सभी लिंक मिल जाएंगे. 10th क्लास की सारी वीडियो 10th क्लास का लिंक है और 11th क्लास की सारी वीडियो का 11th क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं. फर्स्ट सब्सक्राइब करें, उनको गाइड करो, ठीक है. एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ये मत भूलना, ठीक है. कि वीडियो कैसी लगी उनको गाइड करो, उन्हें कहो कि आगे अपने फ्रेंड को भी वो इसको फॉरवर्ड करें, वीडियो को अपने फ्रेंड को जो क्लास में सेम में पढ़ते हैं. ओके, थैंक यू.